Good morning, students. In previous classes, we have studied about the isomerism in complex compound, that is in coordination compound, in which we have studied the structural isomerism and stereoisomerism. In structural isomerism, we have studied linkage isomerism, coordination isomerism, hydrate isomerism, and ionization isomerism. And next was stereoisomerism, which is classified into geometrical isomerism and optical isomerism. In geometrical isomerism, it is cis and transform, which we have studied in previous classes. And on yesterday we have also studied about the optical isomerism. Those compounds which rotate the plane polarized light either left side or right side are known as optical active compound, and the phenomenon is known as optical isomerism. ठीक है, तो हम लोग देखे थे कि plane polarized light, the ordinary light is multidirectional, and when it is passed through the Nicol prism it will be unidirectional, known as plane polarized light. And when the plane polarized light is passed through the solution of a compound, and when it will rotate either towards left side or right side, then it is optically active, otherwise inactive. ऑप्टिकली इनएक्टिव ये हम लोग देख चुके थे, जिसमें हम लोग कुछ आपको देखे थे कंपाउंड में, जैसे कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन देखे थे. The molecules should be asymmetric, which never has a plane of symmetry. एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दो तरह का होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री. दैट प्लेन फ्रॉम व्हिच the compound can be subdivided into two equal half is known as plane of symmetry, and that center through which the compound can be subdivided into two equal half is known as center of symmetry. The molecule should be asymmetric, that means it should not superimpose on their mirror image. Those compounds which are optically active and do not superimpose on their mirror image are known as chiral molecules or chiral compound, not chiral. Now some students are reading as a chiral, it is wrong. It is chiral molecules, and such type of compounds are also known as enantiomers. लेकिन एक वर्ड और मैं बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस भी करूंगा, कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो आपको नॉन सुपर, नाइदर मिरर इमेज नॉर सुपर इम्पोजेबल बट ऑप्टिकली एक्टिव. सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज व्हाट? एनीवन प्लीज? Those compounds which are neither mirror image nor superimposable but optically active, such compounds are known as what? Anurag, question? No sir, नहीं. Question passes to Akhilesh. Question passes through Sunidhi. सर कुछ क्लियर सुनाई नहीं दिया सर. हाँ बेटा, आज नेटवर्क का दिक्कत है, आज होगा, दिक्कत होगा. देखिए, वैसे कंपाउंड ना तो वो मिरर इमेज है, ना ही सुपर इम्पोजेबल है, बट ऑप्टिकली एक्टिव है. सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज डाइस्टेरियो आइसोमर्स. क्या कहलाते हैं? डाइस्टेरियो आइसोमर्स कहलाते हैं. वो मैं आपका जब ये कंपाउंड पढ़ेंगे, आप क्या कहा जाता है, 11th में भी ऐसे हो सकता है चर्चा की हो, अगर नहीं की हो तो भी मैं चर्चा कर दिया. ठीक है, इसमें हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स में आप पढ़ेंगे. ठीक है, वैसे कंपाउंड जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन ना तो मिरर इमेज है ना ही सुपर इम्पोजेबल है, सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज डाइस्टेरियो आइसोमर्स. तो चलिए, वो तो मैं बता ही दिया. आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेज. तो mirror image isomerism is not possible in tetrahedral and square planar complexes of type Ma4, Ma3b and Mab3. It would have a plane of symmetry and hence it will not be optically active. वैसा टेट्राहेड्रल जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो दो तरह का इसमें, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा या dsp2 होगा, बताएंगे हम. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जहां पढ़ाने लगेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास मैं बताऊंगा. तो 4 कोऑर्डिनेशन होने का, कोऑर्डिनेशन नंबर होने का मतलब है कि चाहे तो वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा या dsp2 होगा. अगर dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर उसका शेप होगा, और अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा. तो चाहे यह टेट्राहेड्रल हो या स्क्वायर प्लेनर हो, और अगर फॉर्मूला इस फॉर्मेट में हो Ma4 ना, चारों लिगेंड्स ये हो सेम हो, या 3 लिगेंड सेम हो एक अलग हो, या एक 3 एक तरह का हो और एक अलग हो, इस तरह इस फॉर्मेट में, तो उस वे ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं. वजह इसका क्या है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें पाया जाएगा, इसलिए हो जाता है. आइए, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज सेल्डम शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. कभी कभी ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज शो करते हैं. कहाँ से पाया गया है? एज पर द रिसर्च वर्क.
इस पर रिसर्च वर्क से ही डाटा मिलता है, और इससे हम लोग ये देखते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज जो होता है seldom shows optical isomerism since they have all the four ligands and the central metal ion in the same plane, hence contain plane of symmetry, therefore complex becomes optically inactive and cannot show optical isomerism even though all the ligands are different। ठीक है, तो इसमें कभी कभी शो करता है, शो कर नहीं करने का मेन वजह क्या होता है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, क्योंकि सारे के सारे आपका स्क्वायर प्लेनर में एक ही प्लेन में होते हैं, तब एक प्लेन में है तो टू इक्वल हाफ में उसे काटा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसा कंपाउंड है स्क्वायर प्लेनर का जो कि आपको ऑप्टिकली एक्टिव पाया गया, वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन 1935 मिल्स एंड Quibel succeed in the resolving isobutylene diamine mesostabiline diamine platinum second chloride, जो कि फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, complex into a highly stable enantiomorph. This complex shows optical isomerism. This in fact provide a very elegant proof of the plane arrangement of the four valencies। प्लेटिनम सेकेंड का जो कंपाउंड है इसमें यही एक ऐसा कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। दिस स्ट्रक्चर हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड हेंस इज अनसिमेट्रिकल एंड ऑप्टिकली एक्टिव एंड गिव्स ऑप्टिकल आइसोमर ना, वो स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही प्लेटिनम वाला प्लेटिनम कंटेनिंग कंपाउंड है जिसमें कि आपका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, लेकिन टू इक्वल हाफ में हम लोग नहीं काट सकते हैं। कैसे नहीं काट सकते हैं इसको देखिए, अगर यहाँ से काटिएगा, ठीक है, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों अलग अलग है। यहाँ पर देखो CH3 2 है, यहाँ पर C6H5 एक CH के साथ है, यहाँ CH के साथ CXH5 है, यहाँ CH2 है, टू इक्वल हाफ में नहीं काट रहा है। ऐसे अगर काटते हैं तो ये भी टू इक्वल हाफ में नहीं कटता है। ठीक है, उसी तरह से ये कंपाउंड है, इसको भी हम लोग टू इक्वल हाफ में नहीं काट सकते हैं ना, डिफरेंसेज आ रहा है। तो इसीलिए यह कंपाउंड जो है देयर इज लैक ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री और द सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एंड देयर मिरर इमेज विल बी नॉन सुपर इम्पोजेबल, दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। और यह स्क्वायर प्लेनर होते हुए भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो याद रखेंगे ऑप्टिकली ये स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड। टेट्राहेड्रल तो आपका शो करने से रह गया, हालांकि उसमें अगर हम लोग चारों अलग अलग कर दें तो उसमें चांसेज बनता है, जो मैं अगला स्लाइड में डील करूंगा। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि स्क्वायर प्लेनर जनरली नहीं शो करता है, रेयरली शो करता है, वो उसका एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, asymmetric tetrahedral molecules, it should have no plane of symmetry where all the ligands are different ना। अगर टेट्राहेड्रल कंपाउंड हो और MABCD टाइप मतलब चारों उसका लिगेंड्स डिफरेंट हो तो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो करता है। जैसे देख लीजिए ये कंपाउंड है जिसमें ये सेंट्रल मेटल कटायन है, ये ABCD चार लिगेंड्स है, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है और डिफरेंट है, तो इसका मिरर इमेज ये हो जाएगा। अगर इसको उठा करके इस पर सुपर इम्पोज करने की कोशिश कीजिए तो C इसका इस डायरेक्शन में है तो इसमें C इसका इस डायरेक्शन में है, इधर आ जाएगा, सुपर इम्पोज नहीं करेगा और एक दूसरे का मिरर इमेज भी है। तो इस यही वजह है कि यह कंपाउंड जो होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कब होगा, व्हेन द टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स हैविंग 4 लिगेंड्स whose all ligands are different। एग्जाम्पल आपके सामने है, आर्सेनिक के कंपाउंड है ये। ठीक है, एक लिगेंड सल्फर है, दूसरा इथाइल है, दूसरा मिथाइल है और तीसरा बेंजोएट आयन है। ठीक है, और इसका अगर मिरर इमेज देखें तो आप एक दूसरे का मिरर इमेज जरूर है। अगर सुपर इम्पोज करने के लिए कोशिश करेंगे इस इमेज को उठाइए, इस पर डालिए ना, तो बेंजोइक आयन जो है से इसमें इधर लाई कर रहा है जबकि इसमें इधर लाई कर रहा है। अरेंजमेंट अलग अलग है, सुपर इम्पोज नहीं करेगा, इसलिए यह ऑप्टिकली एक्टिव है। Optical isomerism are known for the complexes of B2, zinc 2 and B3 with unsymmetrical bidentate ligands and have been made and shows optical isomerism। ठीक है, बेरिलियम का कुछ कंपाउंड है, कुछ बोरोन का है, कुछ जिंक का है। ठीक है, तो वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं क्योंकि मिरर इमेज पर वे नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, जिसका एग्जांपल आप देख रहे हैं। ठीक है, इन अबव कॉम्प्लेक्सेज नो देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री और द प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर दैट इज ऑन मिरर इमेज, सो इट विल गिव D and L फॉर्म। तो यह ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हो गया बेरिलियम का। अब आइए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हो
तो उसका शेप जो होता है ऑक्टाहेड्रल होगा। हाइब्रिडाइजेशन आपका चांसेज है कि sp3d4 और 2 6 है ना, हाँ sp3d2 हो या d2sp3 हो ना। कब क्या होता है वो हम लोग अलग से हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आइए अब हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमरीज इन 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेज ना। तो उसका शेप कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, कंटेनिंग ओनली मोनोडेंटेट लिगेंड्स। इसको भी हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिए कि ऑक्टाहेड्रल शेप तो जरूर हो लेकिन सभी के सभी लिगेंड्स कैसे हो, मोनोडेंटेट हो। और मोनोडेंटेट भी दो तरह का हो गया, ठीक है। एक तो हो गया कि दो दो ठो तीनों हो, 3 लिगेंड्स हो, सब दो दो नंबर में हो। तो 2 2 4 2 6 देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ऐसा हो कि 6 लिगेंड्स हो और 6 आपका डिफरेंट हो, ए बी सी डी ई एफ देखो सब अलग अलग है। तो ऐसा हो मोनोडेंटेट हो, छो अलग अलग हो, या दो दो तीन ठो का तीनों का हो। तो ऐसे कंपाउंड में भी ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज कंटेनिंग ओनली सिमेट्रिकल बाइडेंटेट चिलेटिंग लिगेंड्स ना। चिलेट वर्ड जो आया है ना, क्लॉज से आया है। चिलेट का मतलब होता है क्लॉज। केकड़ा देखे होंगे, केकड़ा में क्लॉज है, चारों तरफ से इस तरह से घेरता है, ठीक है। तो वैसे लिगेंड्स जो मल्टी डायरेक्शन से आकर के किसी CMC को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द चिलेट, सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज चिलेटिंग कंपाउंड्स एंड दीज आर मोर स्टेबल। Octahedral complexes containing monodentate and symmetrical bidentate चिलेटिंग लिगेंड्स। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट दोनों होते हैं, दोनों कंटेन करते हैं इस फॉर्मेट में। तो यह 3 तरह का हो सकता है ना, तीनों के तीनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज कंटेनिंग ऑप्टिकली एक्टिव लिगेंड्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। कुछ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज ऐसे हैं कि लिगेंड्स ही ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। कुछ कॉम्प्लेक्सेज हैं जो कि पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, जैसे एडिटा पॉलीडेंटेट में आता है, 4 भी होता है, 6 भी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताया था, जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा विद द सेंट्रल मेटल कटायन दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो आइए एक एक करके अब हम लोग देखते हैं। पहला आपका कंपाउंड है Ma2B2C2, मतलब 3 लिगैंड हो और तीनों की संख्या 2 हो। तो ये देखिए आप इस कंपाउंड में देख लीजिए, ए है, ये दोनों बी है, ये बी और ये बी, ये सी और सी, दोनों का मिरर इमेज देख लीजिए। इसका मिरर इमेज ये आएगा आपका, ठीक है। अब इसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश कीजिए। तो अगर ये इस फिगर को उठा करके यहाँ रखते हैं तो देखो यहाँ ए आएगा, जबकि ओवरलैप कर रहा है बी के साथ। यहाँ ए है तो सी के साथ ओवरलैप कर रहा है, यहाँ बी है तो ए वहां पर आ जा रहा है, यहाँ सी है तो यहाँ ए आ जाएगा, उठा के इस पर रखिएगा। दैट मीन्स कि यह क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं, 2 इक्वल हाफ में कहीं से नहीं काट सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो होगा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। जैसे कि ये कंपाउंड देख लीजिए, तो डाई नाइट्रो, पहले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम कीजिए, डाईएमीन क्लोराइड, डाई क्लोराइडो ना, डाई नाइट्रो कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 2 और 2 4, 4 में से 1 माइनस कर दीजिए 3, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका ये सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया। तो थर्ड आयन हो जाए, लिखा जाएगा आपको, क्योंकि आयनिक फॉर्म में -1 चार्जेज यहाँ पर है। तो आयुपैक नेम भी साथ साथ रिकॉल करते चलिए आप, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आइए हम लोग जिस कंपाउंड का एग्जाम्पल मैं दिया हूँ उसका फोटो देखिए कैसे होगा, ठीक है। बाय द वे दिया नहीं हूँ, आप देते रहिएगा बना करके, उसमें देखिएगा, ठीक है। ओनली प्लेटिनम 4 complexes are existing. There are 15 geometrical isomers which I have already discussed in previous classes, each of which would exist in D and L form. That is, each of which a non-superimposable mirror image. That is why they are optically active and gives a total of 30 isomers for one form of platinum. जैसे दिया हुआ है इस कंपाउंड को देखिए प्लेटिनम 4 के लिए, ठीक है। एक दूसरे से नॉन सुपर इम्पोजेबल है, कैसे, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पायरिडीन है, तो यहाँ पायरिडीन के जगह पर NO2 आ रहा है, यहाँ पर क्लोराइड के जगह पर कौन आ रहा है, NH3 आ रहा है, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। यह कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। इसमें चारों के चारों हर एक लिगेंड्स अलग अलग है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज कंटेनिंग ओनली सिमेट्रिकल बाइडेंटेट चिलेटिंग लिगेंड्स ना। वैसे ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड जिसमें एक ही तरह के 3 ठो प्रेजेंट हो लिगेंड्स ना, वो भी बाइडेंटेट हो, भी सिमेट्रिकल हो, जैसे इथिलीन डायमीन। तो देख लीजिए एक एग्जांपल इसका ये है,
इसमें इसका मिरर इमेज ये होगा। अगर इसको उठा कर इधर रखिए तो ये ए वाला जो है इथिलीन डायमीन, इसका इधर पड़ रहा है इस साइड, इसमें पड़ रहा है राइट साइड, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि है प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, मिरर इमेज भी एक दूसरे का है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, कायरल मॉलिक्यूल्स हो गया, कायरल मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव हो गए। ठीक है, देख लीजिए दूसरा एक उसी का एग्जाम्पल इसमें देख लीजिए, कोबाल्ट है, इथिलीन डायमीन, इसका नोमेनक्लेचर सबसे पहले देख लीजिए, ट्राई इथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, ये हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। तो इथिलीन डाइअमीन का फॉर्मूला जो होता है ये हो गया NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, इस तरह से हम लोग 3 जगह लगा दिए। इसका मिरर इमेज आपको ये बन गया, इसको उठा करके इस पर रखिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। इसमें इथिलीन डाइअमीन इस साइड है तो इसमें इस साइड है, इसलिए ये क्या है, कायरल मॉलिक्यूल से एनाइंशियोमर होगा, देयरफॉर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ना। दूसरा एग्जांपल और आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको बना करके आप जरूर देखें, प्रैक्टिस से होगा ये आपको। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज कंटेनिंग मोनोडेंटेड एंड सिमेट्रिकल बाइडेंट चिलेटिंग लिगैंड्स। तब वैसे ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड जिसमें मोनोडेंटेट भी हो और बाइडेंटेट भी लिगैंड्स हो, अगर बाइडेंटेट हो तो चिलेटिंग लिगैंड्स हो, और चिलेटिंग लिगैंड्स क्या कहा जाता है, क्लॉज के फॉर्म में डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इस कंपाउंड को। तो इसका सबसे पहले आयुपैक नेम देखिए, ये हो गया ई से, ये हो गया डाइक्लोराइडो 20 इथिलीन डाइअमीन। डाइअमीन इसके नाम में पहले ही से डाई लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर 2 के लिए बाई या डाई नहीं लगाएंगे, 20 लगता है। तो डाइक्लोराइडो 20 इथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, सॉरी कोबाल्ट थर्ड आयन, चूंकि आयनिक फॉर्म है, इसका ये पैक नेम हो गया। दिस कॉम्प्लेक्स हैज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस एंड ट्रांस। ठीक है, इन सिस आइसोमर देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, हेंस इट शोज ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। हो देखिए कंपाउंड देख लीजिए सिस आइसोमर का, इसका मिरर इमेज ये हो गया, और इट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज एंड देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, thus this molecule is chiral molecules and enantiomer, therefore it is optically active compound. In trans isomer there is a plane of symmetry, hence it is optically inactive and shows mesoform as shown below। देखिए इसमें देखिए ये क्लोरीन और ये क्लोरीन एक दूसरे के क्रॉस है तो ट्रांसफॉर्म हो गया। इसका मिरर इमेज ये इथिलीन डाइअमीन हो गया, इथिलीन डाइअमीन हो गया, इसका मिरर इमेज यही होगा, सेम हो गया। उठा के इस पर रख दीजिए, ठीक है, तो ये क्या कहा जाएगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन इसके लिए एक नया वर्ड यूज होता है, मीजोफॉर्म। ठीक है, वैसे कंपाउंड जो सुपर इम्पोजिबल हो ऑन मिरर इमेज, मतलब कि एक कायरल मॉलिक्यूल हो, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं एंड आर रिगार्डेड एज मीजोफॉर्म। एक नया आइसोमर है जो कि आप 11th में बताया था, इसमें टार्टरिक एसिड में मीजो टार्टरिक एसिड एक वर्ड यूज किया था मैं इसमें 11th में आपको। तो यहाँ पर ये मीजोफॉर्म में है, इसमें ऑप्टिकली यह है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि ये सुपर इम्पोज कर जाता है मिरर इमेज पर। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, Ma2AB टाइप ना, जिसमें कि ए क्या है आपका बाइडेंटेड सिमेट्रिकल है, ये लिगैंड्स है, ये मोनोडेंटेड लिगैंड्स है, और ये दोनों डिफरेंट है। दीज कॉम्प्लेक्सेज आल्सो एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म, इन विच 2 फॉर्म आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड थर्ड फॉर्म इज इनएक्टिव एंड रिगार्डेड एज मीजोफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका मिरर इमेज ये हो जाएगा। ठीक है, तो मिरर इमेज इसको इस पर डालिएगा तो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो रहा है, इधर ए है इधर नहीं है, इसमें है तो इधर नहीं है, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गया। सिस फॉर्म है। ठीक है, कैसे सिस फॉर्म है वो देख लीजिए आप, ये और ये एक दूसरे का एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, सिस फॉर्म हो गया आपका। तो ये सिस, ये भी सिस, तो एक डी फॉर्म होगा तो एक एल फॉर्म हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। लेकिन अगर इसी का ट्रांसफॉर्म बना दिया जाए, इथिलीन डाइअमीन इधर कर दें, इथिलीन डाइअमीन इधर कर दें, एक ए इधर कर दें, एक बी इधर कर दें, तो ये सिमिलर ग्रुप वाले क्या है, दूसरे से एक क्रॉस है, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया। लेकिन 2 इक्वल हाफ में काट कर देखिए, यहाँ से 2 इक्वल हाफ में कट जाएगा, आपको इधर से काट दीजिए 2 इक्वल हाफ में कट जाएगा, मतलब कि वह नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा। ये सॉरी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज बना करके देखिए तो ये ए इधर भी है इधर भी है, मिरर इमेज में भी ए और बी इधर रहेगा और सुपर इम्पोज कर जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग मीजोफॉर्म कहते हैं। MAA A2B2 टाइप। ठीक है, अगर ये बाइडेंटेट हो और संख्या इनका एक ही हो,
दो दो आपका मोनोडेंटेट लिगेंड्स हो, दोनों दो दो की संख्या में हो, मोनोडेंटेट हो, तो उसका देख लीजिए एक एग्जांपल ये है आपका, ठीक है। ऑक्जेलेट आयन है, C2O4-2 होता है, ऑक्जेलेट आयन है जिसकी संख्या 1 है, NO2 आपका 2 है, NH3 2 है। इसका मिरर इमेज बना के देखिए, ये बनेगा, यह नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन मिरर इमेज है ना। तो ये कौन सा फॉर्म है? सिस फॉर्म है, ठीक है। सिस फॉर्म है तो ये जब सिस फॉर्म है और तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन मिरर इमेज है। लेकिन उसका ट्रांसफॉर्म बना करके आप देखिए ना, एक का NH3 दूसरे का NH3, यहाँ पर एक क्रॉस है, इसमें NH3 और ये NH3 एडजेसेंट था, ठीक है, सिमिलर ग्रुप वाला, ठीक है। ये NO2 से लेते हैं तो ये एडजेसेंट है, ठीक है, इसलिए ये सिस फॉर्म में था। यहाँ पर आपका अगर NH3 हम लेते हैं तो NH3 और NH3 एक दूसरे का क्रॉस है, इसीलिए ट्रांसफॉर्म है। लेकिन इसका मिरर इमेज बनाइएगा तो यह सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा, ठीक है। यही वजह है कि यह ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव है, इसीलिए इसको हम लोग मीजो फॉर्म कह देते हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज कॉन्टेनिंग ऑप्टिकली एक्टिव लिगेंड्स, कुछ ऐसे आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है जिसका लिगेंड्स ही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ना। जैसे कंपाउंड देख लीजिए, ये इथिलीन डाइअमीन है, यहाँ पैरिडीनियम है, तो इसको अगर आप लेते हैं तो इसका मिरर इमेज ये हो गया, ठीक है। तो ये कैसा फॉर्म? एक नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन मिरर इमेज हो जाएगा, ठीक है। और यही वजह है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। उसका दूसरा फॉर्म देख लीजिए, पी आइसोमर का, इस तरह से इसको बना दिए, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज कंटेनिंग पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, जैसे इस कंपाउंड का नाम देख लीजिए, एडिटा है, ठीक है। देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथीन लिख लिए, यहाँ पर H और यहाँ पर H मानिए, यहाँ पर H मानिए, यहाँ पर H मानिए, तो इथिलीन डाइअमीन इसका नाम हो गया, कॉमन नेम हो गया, ठीक है, इथिलीन डाइअमीन। यहाँ का H हटा दिए, H हटा दिए, H हटा दिए, एक H हटा दिए और एसीटेट आयन जोड़ दिए। कैसा आयन जोड़ दिए? एसीटेट आयन जोड़ दिए, दोनों हाइड्रोजन के जगह पर, दोनों हाइड्रोजन के जगह पर, तो 4 एसीटेट आयन हो गया। तो डोनर एटम इसमें देख लिए, 1 2, आप बताइए इसमें कितने डोनर एटम है? देख के बताइए। अनुराग, अखिलेश? 6 सर। 6 बिल्कुल सही आंसर आपका। देखिए कहाँ कहाँ से है, एक ये डोनेट करेगा, दूसरा ये डोनेट करेगा, 3 ये डोनेट करेगा, ये 4 हो गया। यहाँ नाइट्रोजन हिस्स पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन हिस्स पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है 6, टोटल 6 हो गया। तो ये हेक्साडेंटेट भी हो सकता है, टेट्राडेंटेट भी हो सकता है, दोनों डिपेंड करेगा सिचुएशन पर और कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए पॉलीडेंटेट लिगेंड्स है। और एक चिलेटिंग लिगेंड्स है, क्लोज में आकर के इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो कहता है कि द कॉम्प्लेक्सेज हैविंग पॉलीडेंटेट लिगेंड्स लाइक एडिटा एग्जिस्ट इन 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स D and L फॉर्म एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया D फॉर्म और दूसरा हो गया L फॉर्म, कोबाल्ट के साथ इथिलीन डाइअमीन आपका लगा हुआ है ना, जिसका क्या कहा जाता है? मिरर इमेज देख रहे हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है। आइए रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक, पहले तो रेसमिक मिक्सचर एक बार रिकॉल करा दूं। दोज मिक्सचर in which equimolar quantity of L and D form is present is known as a racemic mixture. It is optically inactive due to external compensation. Why the word we are using external? Because we are mixing externally the L and D form in equal amount. ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको एक्सटर्नल कंपनसेशन कहते हैं। द सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इन D and L फॉर्म इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। अलग अलग हम D और L को क्या कर दें? अलग अलग कर दें, तो उसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग रिजोल्यूशन कहते हैं। और रिजोल्यूशन कई मेथड से होता है, ठीक है। जैसे कोई कंपाउंड ऐसा ले लिए, तो एक कंपाउंड सोलोबल हो, दूसरा इनसोलोबल हो, ऐसे सॉल्वेंट में डाल करके प्रिसिप अलग अलग कर दिए, फिल्ट्रेशन कर दिए। या ऐसा कर सकते हैं कि दोनों कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो,
तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। सिंस डी एंड एल फॉर्म है सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी मेथड लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड ये क्या कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन में प्रोसेस, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्लोज होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग अलग नहीं कर सकते इन प्रोसेस से। लेकिन अगर ऐसा हम लोग बना दें जैसे चींटी डाल दें उसमें, कोई शुगर है 2 फॉर्म में है, मिक्सचर है, चींटी डी फॉर्म को खा जाए, एल फॉर्म को छोड़ दे, तो एल फॉर्म अलग हो गया। The most widely used method is the formation of diastereoisomers, which are optically active isomers but not superimposable on mirror image of each other, are called diastereoisomers and not enantiomers. ना, that is not enantiomers, mirror image and superimposed, ठीक है, hence have different solubility in water and can be separated by fractional distillation। और जब इस तरह के solubility अलग अलग हो जाएगा तो उसको fractional crystallization मेथड से हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है? हाँ बोलिए बेटा। रेसेमिक मिक्सचर क्या चीज? रिपीट योर क्वेश्चन। रेसेमिक मिक्सचर सर। रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक नहीं, रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर देखिए 250 ml हम एल फॉर्म ले लिए लिवोरोटेटरी किसी कंपाउंड का, ठीक है, सपोज ग्लूकोज ले लिया 250 ml लिवोरोटेटरी, उसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी ले लिया 250 ml, दोनों को मिक्स कर दिए तो जो मिक्सचर मिला वह ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, और उसी मिक्सचर को हम लोग रेशमिक मिक्सचर कह देंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। यस सर। चलिए आगे बढ़े फिर। यस सर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूं मैं, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड देख लेता हूं, अगर टाइम होगा तो आज पढ़ाऊंगा, ना भी टाइम है। चलिए देखिए आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट होता है जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स पोर्शन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया, इट इज नॉन आयोनाइजेबल, और कॉम्प्लेक्स पार्ट के जो बाहर वाला पोर्शन होता है वह आयोनाइजेबल होता है जिसको हम लोग आयनोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट में जो मेटल होता है उसको सेंट्रल मेटल कटायन कहते हैं, सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या कि सेंट्रल मेटल कटायन में जो ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है, कौन कौन ऑर्बिटल, CMC under the influence of ligands can use its n-1d, ns, np and nd orbitals for hybridization। जो सेंट्रल मेटल कटायन है उसका जो d ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है या p ऑर्बिटल है, बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करता है, ठीक, किस चीज में, तो सबसे पहले तो वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। देखो अगर n है यहाँ तो ns, np, nd और n-1d भी है, जैसे किसी में हो गया 4d है, 4s है, 4p है, तो यहाँ 4d भी हो सकता है, यहाँ 3d भी हो सकता है। अगर n-1d ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर रहा हो तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है, अगर nd ऑर्बिटल्स टेक पार्ट कर रहा है तो इसको आउटर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, आउटर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसको इनर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर इनर ऑर्बिटल, आउटर अगर ऑर्बिटल यूज हो रहा है d का तो आउटर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो सबसे पहले फिर एक बार रिकॉल कीजिए, अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट का जो सेंट्रल मेटल कटायन है या सेंट्रल मेटल है या सेंट्रल मेटल आयन है ना, इट प्रोवाइड्स वैकेंट डी ऑर्बिटल। कैसा डी ऑर्बिटल, तो ns, np, nd और n-1d ऑर्बिटल, यह उसका नंबर किस चीज पर डिपेंड करेगा, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स पर डिपेंड करेगा। उस कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे, जितने उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उतना ही अवेलेबल वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, और वे दे अंडरगोज व्हाट, दे अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन and these hybrid orbital will overlap with the orbitals of the ligand to form bond, और इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। These hybrid orbitals are allowed to overlap with the ligands orbital that can donate the electron pair for bonding। तो आ जाइए हम लोग देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कोबाल्ट का ना, इसका आईपैक नेम हो जाएगा हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड आयन, ठीक है। तो कोबाल्ट यहाँ पर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास ये है, ठीक है। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कितना हो गया आपका 27,
आर्गन 4s2 3d7 हो गया, ठीक है, जिसमें कि 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा कोबाल्ट से, तो 4s 0 हो गया, 3d 6 हो गया, ठीक है। तो देखिए 3d 6 इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 6। But when the 6 ligands will approach these orbitals, na, which contains unpaired electron also, na, the number of vacant orbital undergoing hybridization should be equal to 6 because it contains 6 लिगैंड, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसलिए 6 वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल कितना है, 3। यहाँ पर आपका Nd भी है, Ns भी है, लेकिन यहाँ 3d भी है, तो Np में तो 6 होगा ही, वो कन्फर्म रहिए आप। अब हम लोग को 3d देखना है या Nd देखना है, तो ये 6 नंबर ऑफ जो आपका अमीन है, अमोनिया है, ठीक है, क्या कहलाता है, एमिन पढ़ाता है ना इसका आईयूपैक नेम में, ठीक है। तो ये दे विल रिपेल, their lone pair of electron will repel the electron present in these orbitals which contain single electrons। और कैसे रिपेल करेगा वो देखिए आप, और कहाँ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एनिमेशन के जरिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों को जब रिपेल कर दिया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया अंदर, पहले से एक था ही, यहाँ पेयरिंग हो गया, यहाँ पेयरिंग हो गया, यहाँ 2 वैकेंट ऑर्बिटल बन गया, तो n-1d ऑर्बिटल का 2 ऑर्बिटल d ऑर्बिटल हो गया, 2d ऑर्बिटल हो गया, ns का हो गया। ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, nd नहीं np होगा, p का 3 ऑर्बिटल होता है, यहाँ पर np होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, अब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो देखो 3 4 5 6 वैकेंट ऑर्बिटल हो गए। these or vacant orbitals will be intermixed to form new orbitals in which energy is redistributed to form equivalent orbitals known as hybrid orbitals। और ये hybrid orbitals का फॉर्मेशन कर लेंगे। उस hybrid orbital में ये अमोनिया जो होगा या कोई भी दूसरे लिगेंड्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इट इज हाँ, अब इसके पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, यहाँ से हम लोग देख करके पता कर लेंगे। तो इसमें देखिए कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, टोटल 6 ऑर्बिटल्स थे, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गया, इसी में आपको लिगैंड्स अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बना देगा। देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक, ठीक है। And it will be colorless, why so, because there is no unpaired electron, therefore there will be no dd transition, ठीक है, और dd transition नहीं होगा। देखो स्पिन वैल्यू देखो, प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 0 प्लस हाफ माइनस हाफ स्पिन वैल्यू होता है, तो दोनों 0 हो गया, इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया। तो जब चूंकि n-1d ऑर्बिटल इनर d ऑर्बिटल यूज हुआ है, ठीक है, तो इनर डी ऑर्बिटल में क्या हो गया, स्पिन वैल्यू डिक्रीज कर गया, इसलिए इसको लो स्पिन भी हम लोग कहते हैं, या क्या कहा जाता है, लो स्पिन या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं ना, क्या कहेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नो नंबर ऑफ एजम्पशंस, इसमें बहुत ज्यादा एजम्पशंस है, ठीक है। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड, जैसे कोई लिगैंड्स जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, ठीक है, कहीं पर वाटर जो होता है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कहीं पर वीक हो जाता है, हाइलाइट्स को देख लीजिए, वीक हो जाता है, ठीक है। तो कोई लिगैंड्स क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्यों वीक है, इट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर क्यों एग्जिबिट करेगा, क्यों नहीं करेगी, तो हम लोग जान रहे हैं, इसलिए मैं बता दिया कि डी ट्रांजिशन हो जाएगा जी, उसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब वो कलर शो करेगा, नहीं तो इट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ना। अब आ जाइए, हम लोग देखने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आप देखेंगे, लिगेंड्स एज ए पॉइंट चार्ज इन द केस ऑफ अनायन और डाइपोल इन द केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। लिगेंड्स 2 तरह के होते हैं, चाहे तो वह पॉइंट चार्ज कहलाएगा, ठीक है, या डाइपोल कहलाएगा। डाइपोल कब कहलाएगा, अगर मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल हो,
जैसे NH3 H2O डाइपोल कहलाएगा। कैसे, क्यों डाइपोल कहलाएगा? डाई मतलब दो, पोल मतलब चार्जेज। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। वाटर में डाइपोलर है, डाइपोल होगा। क्यों होगा? ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ रहा है, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आ रहा है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज है, इसलिए वह डाइपोल है। NH3 डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर कोई लिगैंड्स माइनस चार्ज वाला हो, अनायन हो, जैसे OH माइनस ना, Cl माइनस, ठीक है, तो जब माइनस चार्ज वाला अगर आपका कोई मॉलिक्यूल्स हो रहा हो, ये लिगैंड्स हो रहा हो, तो उसको हम लोग पॉइंट चार्जेज कहेंगे। और यही अगर यही जो ये लिगैंड्स जो होता है अपने निगेटिव पोर्शन के तरफ क्रिस्टल ये CMC को अप्रोच करते हैं। क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं। तो डाइपोल का नेगेटिव पोर्शन सेंट्रल मेटल कैटायन की तरफ जाएगा। अनायन है तो ऑलरेडी नेगेटिव है, सेंट्रल मेटल कैटायन को अप्रोच करेगा। द सेंट्रल मेटल कैटायन आल्सो कंटेन्स the orbitals in which there is presence of the electron. There will be electronic repulsion between the electron of the dipole or the point charges and central electron of the central metal cation. जब आपको ये डाइपोल यानी लिगैंड का डाइपोल या पॉइंट चार्जेज लिगैंड्स जब when they approaches the central metal cation, its electron will approach the repel the electron of d orbital, ठीक है, present in central metal cation. Due to repulsive forces, these orbital will be splitted into two category, ठीक है, this is known as splitting of d orbital, and they will be splitted up into two group, that is T2G and EG, which I have taught you in class 11 about the types of the d orbital in complex। ये क्या कहा जाता है? d orbital में दो तरह का होता है, पढ़ा चुका हूं मैं, जिसको T2G और EG कहते हैं, डबल डिजेनरेट और ट्रिपल डिजेनरेट। आइए फिर वंस अगेन इसको हम लोग रिकॉल करते हैं। Bonding in complex ion is purely ionic due to electrostatic force of attraction। जब देखो सेंट्रल मेटल कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज हो गया आपका, और ये डाइपोल हो गया, नेगेटिव चार्ज वाला पोर्शन हो गया, ये नेगेटिव आयन है, तो पॉइंट चार्ज जिसको कह रहे हैं, जो नेगेटिव पोर्शन से अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल कैटायन को, तो प्लस माइनस एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, कूलम्बिक फोर्सेज लगेगा। जब जहां पर कूलम्बिक फोर्सेज लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट की बात कहां से आ गई? इसलिए इसमें देयर इज नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, यही कहता है कि इसमें प्योरली क्या है? आयनिक है, क्योंकि प्लस माइनस बन रहा है इसलिए प्योरली आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि पॉजिटिव मेटल आयन एंड नेगेटिव एंड ऑफ द लिगैंड्स दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लोन पेयर ऑफ लिगैंड्स एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल कैटायन, इनके बीच में आपका अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं बल्कि रिपल्सिव फोर्सेज लगेगा। और रिपल्सन दो सेट में दो तरह से अप्रोच कर सकता है। अगर आपको T2G को अप्रोच करेगा तो T2G के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिपेल करेगा, और ज़्यादा रिपेल करेगा तो T2G की एनर्जी बढ़ जाएगी, VG की एनर्जी उसके रिस्पेक्ट में कम रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था लिगैंड्स का, और डी ऑर्बिटल को अप्रोच कर रहा है EG को ना, डबल डिजेनरेट ऑर्बिटल को, ठीक है, यानी कि dxy dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर को अप्रोच कर रहा है, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी रिपल्सिव फोर्स के चलते, और T2G की एनर्जी उसके रिस्पेक्ट में घट जाएगी, कम रहेगा, क्योंकि वहां पर रिपल्सिव फोर्स नहीं हो रहा है, ठीक है। द d ऑर्बिटल in an isolated gaseous metal atom or ion are degenerated, which is maintained by spherical symmetrical field of negatively charged. This degeneracy is lifted when negative charge are due to ligands. It results in the splitting of d orbital। तो जहां पर रिपल्सिव फोर्स आएगा ना, तो जिसके वजह से d ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं, और इसी को हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल कहते हैं ना। देख लीजिए, थोड़ा सा एनिमेशन से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इज ऑफ टू टाइप्स, यह दो तरह का होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हो सकता है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता है। तो आइए सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आप देख लीजिए। dz स्क्वायर का देखिए शेप ये है, ठीक है, और दोनों क्या है? एक्सियल ऑर्बिटल से एक्सिस पर लाई करते हैं। और दूसरा EG ऑर्बिटल जो आपका है डबल डिजेनरेट का, वो हो गया आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो दो तरह से ये होता है, दोनों एक्सिस पर लाई कर रहा है। अगर एक dz एक्सिस पर लाई कर रहा है तो यहाँ dx स्क्वायर माइनस x एक्सिस और y एक्सिस पर ये लाई करेगा। जब दोनों जब लाई करेगा तो लिगैंड्स जो होगा अप्रोच कर रहा है, देखो
इसको किस पोर्शन से अप्रोच कर रहा है, तो एक्सिस से अप्रोच कर रहा है। तो एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे यानी ईजी ऑर्बिटल्स जो होंगे उसको ज्यादा रिपेल करेगा, और जहां पर ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होता है तो ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होने से क्या होगा, आपका उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जिसको अप्रोच नहीं कर रहा है उसकी एनर्जी रिस्पेक्टिवली कम होगी, जिसकी वजह से ये दो सेट में टूट जाता है, जिसको हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल कहते हैं। एंड देयर विल बी सेपरेटेड बाय सम एनर्जी डिस्टेंस, और सब एनर्जी गैप से ये सेपरेटेड होते हैं, और इसी फेनोमेनन को हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लिगेंड्स आपको dz स्क्वायर को अप्रोच कर रहा है, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को भी अप्रोच कर रहा है, और रिपल्सिव फोर्स लिगेंड्स और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगा, जिसकी वजह से ये स्प्लिट कर जाएगा। आइए मैं आपको अब एनिमेशन के जरिए दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो एनिमेशन के जरिए इसमें आप देख लीजिए, पहले ऑर्बिटल जो पांचों था ये देख लो इस तरह का था, जो कि डीजेनरेट है ना, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ग्राउंड स्टेट में सभी सभी डीजेनरेट है। यहाँ डी ऑर्बिटल इन एक्साइटेड स्टेट में कर दिए तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यह दो सेट में है, दो तरह का ऑर्बिटल्स होता है, T2G यानी ट्रिपल डीजेनरेट और डबल डीजेनरेट। एक्सियल ऑर्बिटल को हम लोग ईजी कहते हैं, डबल डीजेनरेट कहते हैं, और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल को हम लोग T2G ट्रिपल डीजेनरेट कहते हैं। और यही लिगैंड्स जब इस ऑर्बिटल को अप्रोच करेगा तो अप्रोच एक्सिस के तरफ से कर रहा है, किस में, कम में, आपको टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, इसलिए एक्सियल ऑर्बिटल यानी ईजी की एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। कैसे अप्रोच करता है, कैसे रिपल्सिव फोर्स लगता है, कैसे ये टूटता है, वो आप देखिए स्क्रीन पर। तो ये आपका डी ऑर्बिटल को रिपेल किया, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगा, इट डायरेक्टली अप्रोचेज द फ्रॉम द एक्सिस साइड, ठीक है, एक्सिस साइड से अप्रोच करता है, जिससे एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई। देखो लाल कर दी है, इसकी एनर्जी बढ़ गई, और इसकी एनर्जी रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए रिस्पेक्टिवली कम होगा, ठीक है। और दोनों के बीच के एनर्जी गैप को हम लोग स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। एंड इन द केस ऑफ octahedral complexes, ligand approaches from the axis side, from the axial side, that is why the energy of Eg is increased to that of the T2G orbital, ठीक है। अब देख लीजिए स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल। टेट्राहेड्रल क्रिस्टल में जो होता है वो आपको क्या कहा जाता है, नॉन एक्सिस के तरफ से लिगैंड से अप्रोच करते हैं, नॉन एक्सियल साइड से, प्लेन के साइड से अप्रोच करते हैं, जिसके चलते T2G की एनर्जी बढ़ जाती है और Eg की एनर्जी घट जाती है। देख लीजिए आप। तो यहाँ देख लीजिए T2G की एनर्जी बढ़ गई, Eg की एनर्जी घट गई। अब एनर्जी की डिफरेंस है जो T2G और Eg के बीच में है, स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाता है, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हो गया। अब देखो अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो Eg में, ठीक है, और इसको हीट किए तो Eg से जंप करके T2G में जाएगा, ठीक है, where it will be no more stable, so that electron will return back from T2G to Eg, and when the electron will return back from higher energy level to lower energy level, it will radiate the energy, and if its radiation falls, its wavelength falls in the range of visible spectrum, they will show color. This is known as DD transition, जो हम लोग पढ़े थे कहाँ, कॉम्प्लेक्स इसमें पढ़े थे, डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़े थे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सपोज की है, इसको हीट कर दिए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आने के बाद इट विल बी नो मोर स्टेबल, सो दैट इट विल रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल सबशेल, ठीक है। ओरिजिनल ऑर्बिटल में आना चाहेगा, तब जब ऊपर हाई लेवल से लो लेवल में इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है, अगर उसका वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम में पड़ जाए तो वह कलर शो करने लगता है। दिस इज नोन एज डीडी ट्रांजिशन। एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रह गया, बस यही रहने दीजिए। थोड़ा यहाँ पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये आपका स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल से कुछ और ऐड करना है, ठीक है। ऐड करूंगा तो फिर इसको पढ़ाऊंगा। आज की सभा यही समाप्त होती है, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं कल।